الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عفت ماں بہنوں، کل ہم لوگوں نے نظم پڑھی تھی اور اس نظم میں ہم نے اللہ کی بہت ساری صفات کو پڑھا تھا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلی صفت اعلیٰ، یہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، اور اس کے بالمقابل کیا آئے گا؟ اعلیٰ کے بالمقابل ادنا، اس کا اپوزٹ جو ہوگا کیا آئے گا؟ ادنا۔ اسی طرح ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا مولا۔ یہ مولا لفظ جو ہے ان الفاظ میں سے ہے جو موافق اور مخالف دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مولا مانے آقا، تو مولا کے معنی غلام اور نوکر کے بھی ہوتے ہیں۔ مولا کے معنی غلام اور نوکر کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ مولا ان الفاظ میں سے، ان کو کہتے ہیں مولا حروف ازداد میں سے، متضاد الفاظ میں سے، یعنی ایسے الفاظ میں سے ہے جو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، موافق میں بھی اور مخالف میں۔ تو مولا یہ آقا، سردار، رب، مالک، غلام، ان تمام معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں باقاعدہ وارد ہے انت مولانا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے بارے میں کہا انت اخونا و مولانا، کہ تم تو ہمارے بھائی ہو اور ہمارے غلام ہو، تم تو ہمارے بھائی ہو اور تم تو ہمارے غلام ہو۔ تو وہاں مولا جو ہے یہ غلام اور خادم کے معنی میں، تو خادم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی مولا آقا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صفت استعمال ہوئی تھی خالق، پیدا کرنے والا، ایک صفت استعمال ہوئی تھی قادر، قدرت والا، ایک صفت استعمال ہوئی تھی سمیع الدعاء، دعاؤں کے سننے والا، ربنا تقبل انک سمیع الدعاء، قرآن میں ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا یہاں ہے، اور دوسرے میں سمیع الدعاء، کہ دعاؤں کا سننے والا۔ اسی طرح ایک صفت استعمال ہوئی ہے رحمت، رحمان اور رحیم، یہ اللہ کی صفات میں سے جس کے معنی رحمت اور مہربانی کے ہیں۔ اسی طرح ایک صفت استعمال ہوئی، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے برابر ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اسی طرح سب کا آقا اللہ، آقا مولا کے معنی میں گزر چکا ہے پہلے لفظ، تو آقا معنی مولا، مددگار۔ اسی طرح کون ہے میرا اس کے سوا، یعنی کون ہے میرا اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرا سہارا اللہ، سہارا مانے مددگار، سہارا مانے مددگار، معاون۔ تو یہاں اعلی، مولا، خالق، قادر، سمیع الدعاء، رحمان، رحیم، ولم یکن لہ کفوا احد، اور معاون اور مددگار کے یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں۔ اس لیے ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو، جب سہارا مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ تو یہاں سہارا مدد کے معنی میں ہے، معاونت کے معنی میں ہے، اعتماد کے معنی میں ہے۔ تو یہ الفاظ ہوئے، یہ نظم ہوئی تھی۔ اب نظم سے کچھ الفاظ جو ہم نے پہلے بتائے تھے وہاں الفاظ ذکر کریں، الفاظ اور معانی۔ تو لفظ کیا؟ اعلیٰ، اونچا، بڑے مرتبہ والا، قدرت، طاقت، قوت، آقا، سردار، مولا، مولا مالک، مدد کرنے والا، رحمت، مہربانی۔
फिर सवाल है किसका सहारा है, तो जवाब ये होगा अल्लाह का। किसका सहारा है, अल्लाह का सहारा है। दुआएं कौन सुनता है, दुआएं अल्लाह सुनता है। रहमत वाला कौन है, तो रहमत वाला कौन है, अल्लाह है। इसी तरह आला और मौला के माना है, तो आला के माने ऊंचा बड़े मर्तबा वाला, मौला माने मालिक मदद करने वाला। अल्लाह के बराबर कौन है, तो अल्लाह के बराबर कोई नहीं। ये सवाल था मुख्तसर सा, जो इस सबक से इन्होंने अर्ज करके बनाया था, इस सबक से अर्ज करके बनाया था। अब इसके अलावा भी इससे सवाल बना सकते हैं कि जैसे यहाँ है अल्लाह के बराबर कौन है, तो आप उसके बरस बना लिए, क्या कोई अल्लाह के बराबर है, क्या कोई अल्लाह के बराबर है, क्या दुनिया में अल्लाह से ज्यादा कोई बुलंद है, अल्लाह से ज्यादा कोई बुलंद है, सबसे ज्यादा बुलंद कौन है, अल्लाह ताला। या इसी तरह आप बना सकते हैं इसमें जो है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों की पूजा पाठ करते हैं, तो क्या वो सब अल्लाह के बराबर है, तो अल्लाह के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि उनको पावर हासिल नहीं, उनको ताकत और कुव्वत हासिल नहीं है, उनको ताकत और कुव्वत हासिल नहीं है। वो दूसरों के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जैसे ईसाई जो है तीन इलाह के कायल है, क्रिश्चियन जो है तीन इलाह के कायल है। एक इस्लाम को मानते हैं, और एक ये जो है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम को मानते हैं, और दूसरे जो है तीसरे जो अल्लाह को मानते हैं। तो जाहिर सी बात है जो बाप होगा वो बड़ा रहेगा, और तीन इलाह तमाम सिफात के साथ बराबर हो, एक जैसे हो तमाम चीजों में, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि एक घर में होता है, घर है, एक मुल्क है, एक शहर है, उस मुल्क में बहुत सारे लीडरान होते हैं, बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारे सिफात में तुम एक दूसरे से मुमासिल होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारी सिफात में एक दूसरे से जुदा होते हैं। सब एक जैसे बिल्कुल नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी और ज्यादती होती है। तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर ज्यादती ज्यादा होगी वो बड़ा होगा, जिसके अंदर क्या में कमी ज्यादा होगी वो छोटा होगा। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे इलाहों का कोई कायल है, तो जाहिर सी बात है वो एक इलाह ही हो सकता है, बहुत सारे इलाह नहीं हो सकते। इसलिए कि इंसान मोहताज होता है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। जितनी मखलूक है सब मोहताज है, अल्लाह किसी की मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी की मोहताज नहीं है। तो अल्लाह जब किसी की मोहताज नहीं है तो जाहिर सी बात तो सबसे बड़ी होगी। हमें और आपको सबको एक दूसरे की हाजत और मदद की जरूरत होती है, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आप सवाल कर सकते हैं कि क्या अल्लाह को बंदों के मदद की जरूरत है, तो आप कहेंगे नहीं, अल्लाह को बंदों के मदद की जरूरत नहीं है। बंदों को अल्लाह को बंदों की मदद की जरूरत नहीं है कि बंदा अल्लाह की मदद करे। या इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह को बंदों के मदद की जरूरत नहीं है, तो अल्लाह ने हमें इबादत करने का क्यों हुक्म दिया, अल्लाह ने हमें इबादत करने का हुक्म क्यों दिया। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने अपनी मदद के लिए हमें अपनी इबादत करने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने का इसलिए हुक्म दिया है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है। तो हमारे ऊपर वाजिब है और जरूरी है कि जो हमारा मुहसिन हो, जिसने हमारे साथ एहसान किया हो, हम उसके एहसान का बदला चुकाएं। तो अल्लाह तबार जैसे हमारे वालिदैन हुए, हमारी पैदाइश का जरिया और सबब,
हमारी पैदाइश का जरिया और सबब है। तो हमारे ऊपर हमारे माँ बाप की खिदमत करना वाजिब और फर्ज है। अगर कोई इंसान अपने माँ बाप की खिदमत को का इनकार करे तो गोया कि वो अपने माँ बाप का इनकार कर रहा है। अगर कोई इंसान अपने माँ बाप की खिदमत का इनकार करे कि हमारे माँ बाप हमारे पर हमारे माँ बाप की खिदमत करना वाजिब और जरूरी नहीं है, तो गोया कि वो अपने माँ बाप का इनकार कर रहा है। तो ऐसे ही कोई इंसान अल्लाह के नेमतों की अल्लाह के नेमतें खाए, अल्लाह की दी हुई रोजी खाए, लेकिन अल्लाह की इबादत ना करे, तो गोया कि वो इंसान अल्लाह की दी हुई रोजी का इनकार कर रहा है। अल्लाह की दी हुई रोजी का इनकार कर रहा है। ये दूसरा सबक था जो हमने पढ़ा। अब ये यहां से तीसरे सबक की शुरुआत होती है। तीसरे सबक की शुरुआत होती है। पहला और दूसरा सबक जो है ये इबादत और अल्लाह की सिफात के हवाले से था, और तीसरा सबक जो है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तबलीग के हवाले से। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सीरत और तबलीग के हवाले से है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था, आप पैदा क्या हुए, आपके अब्बा 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 अम्मा अम्मा का नाम क्या था, आपका बचपन कैसे गुजरा, आपका बचपन कैसे गुजरा, आपको कितने साल की उम्र में नबी बनाया गया, नबी बनाने के बाद होने के बाद आपने लोगों से क्या कहा, लोगों ने आपके साथ क्या मामला किया, आपने लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया, आप मक्का से मदीना क्यों गए। ये तमाम चीजें मुख्तसर अंदाज में इस सबक में बयान की गई है। मुख्तसर अंदाज में इस सबक में क्या की गई है, बयान की गई है। तो मोहम्मद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है। मोहम्मद ये इस्म मफूल का सीगा है, माना है वो जिसकी तारीफ की जाए, ऐसा इंसान जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी हम्द बयान की जाए। मोहम्मद वो जिसकी हम्द बयान की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। तो ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम कुरान में आया है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर क्या है, अल्लाह के रसूल। मोहम्मद नहीं है इल्ला अल्लाह के मोहम्मद, रसूल। मोहम्मदुन इल्ला रसूल। ये सूरह जो है सूरह आल इमरान में है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर अल्लाह के रसूल। तो मोहम्मद लफ्ज आया हुआ है, मोहम्मद क्या है, आया हुआ है कुरान में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये नाम जो मोहम्मद रखा, ये आपके दादा ने रखा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था, अब्दुल किसी को याद है? मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आपके अब्बू का तो पहले इंतकाल हो गया था, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे, उन्होंने उस जमाने के मुताबिक 7वें दिन आपके नाम का जानवर ज़बह किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। 7वें दिन, जैसे इस्लाम में 7वें दिन अकीका किया जाए, कोई बच्चा पैदा हो उसी दिन उसका नाम रखा जाए, उसके सर के बाल मुड़वाए जाएं और उसके बकद्र चांदी जो है सदका किया जाए। ये इस्लाम ने हमें बतलाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपके दादा जो थे अब्दुल मुत्तलिब, जब आपको खुशखबरी सुनाई गई, उन्होंने फौरन लिया, सफेद कपड़े में लिया आमिन आपकी माँ से, और खाने काबा में ले गए और अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह मेरे इस पोते को जो है
इज्जत वाला बना दे और दुनिया में मशहूर कर दे, और ऐसा बना कि इसकी लोग तारीफ करें। इसलिए आपका नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा। और ये नाम ऐसा था कि इससे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया। इससे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम रखा गया तो मक्का वाले अचंभे में हो गए, हैरान हो गए कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम क्या रखा, अजीब गरीब। क्योंकि वहां अब्दुल उज्जा, अब्दुल काबा, अब्दुल फला इस तरह के नाम रखे जाते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा। तो मोहम्मद रखने की वजह से लोग अचंभे में आ गए, हैरान हो गए कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम जो रखा है हमारी तहजीब से गोया कि हट करके रखा। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, मैं जो नाम रखा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पोते की तारीफ की जाए और लोग इसकी इज्जत करें। खाने काबा में ले जाकर दुआ किया तो मोहम्मद नाम रखा। मोहम्मद के मतलब होता है वो इंसान जिसकी तारीफ की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही है और क़यामत तक तारीफ आपकी होती रहेगी। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है। ये मोहम्मद नाम किसने रखा? आपके दादा अब्दुल दादा मुत्तलिब ने। मुत्तलिब ने। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब में रखा। और आपका दूसरा नाम अहमद भी है। तो ये जो मोहम्मद लफ्ज है ये भी, ये कुरान में आया हुआ है। मोहम्मद लफ्ज जो है कुरान में आया हुआ है। इसी तरह लफ्ज अहमद भी कुरान में आया हुआ है। लफ्ज अहमद भी कुरान में आया हुआ है, सूरह सफ में है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौराती मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बशारत सुनाई कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद और मोहम्मद दोनों कुरान में आया हुआ। और अहमद नाम जो है आपकी वालिदा ने रखा, यानी आपकी अम्मी जान हजरत आमिना ने आपका नाम क्या रखा था? अहमद। और अहमद ये इस्म तफजील का सीगा है। और इस्म तफजील का मतलब यह है बहुत ज्यादा काबिल तारीफ। इस्म तफजील का माना होता है कि बहुत ज्यादा काबिल तारीफ। जैसे वहां था मोहम्मद के माना कि वो जिसकी तारीफ की जाए, तो अहमद का माना है कि बहुत ज्यादा काबिल तारीफ, बहुत ज्यादा नेक और सालेह, बहुत ज्यादा हमद जिसकी बयान की जाए वो इंसान। तो माना जो लफ्ज का है अहमद और मोहम्मद का, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह मुकम्मल फिट आ रहा है। अहमद और मोहम्मद का माना जो आपके दादा ने जो आपका नाम रखा, क्या रखा? मोहम्मद रखा। और आपकी वालिदा ने जो आपका नाम अहमद रखा, दोनों माना आप पर मुकम्मल फिट आ रहा है कि आपकी तारीफ की जा रही है और आप काबिल तारीफ है, बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। हर नाहिए से देखा जाए, दोस्त भी तारीफ करता है, दुश्मन भी तारीफ करता है। कोई बुराई बयान अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रसूल बुरा थे, वो इनाद और दुश्मनी की बुनियाद पर बयान कर रहा है। जैसे कोई इंसान किसी की अच्छाई से जलता है या किसी के लोग तारीफ करते हैं उससे जलता है, तो उसके मुतालिक बुरी चीजें मंसूब करता है या गलत कोई सही चीज को गलत तरीके से पेश करता है ताकि उसको बदनाम किया जाए, रुसवा किया जाए और लोगों के दरमियान उसकी इज्जत को घटाई जाए। लेकिन अल्लाह जिसकी इज्जत को बढ़ा दे, जिसके मकाम मर्तबे को बढ़ा दे, दुनिया का कोई इंसान उसके मकाम मर्तबे को घटा नहीं सकता। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मोहम्मद और जो नाम है अहमद, कि मोहम्मद के माने वो जिसकी बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए, और अहमद के माने बहुत ज्यादा काबिल तारीफ। दोनों माना आप पर मुकम्मल फीत और सादिक आ रहा है। तो ये बताया कि आपका नाम ये था और आपकी अम्मी ने ये नाम रखा। फिर कहा हमारे देश, देश मान देश हिंदी का लफ्ज है, इसके माने मुल्क है। देश से दूर
बहुत दूर पश्चिम की तरफ एक मुल्क है, उसका नाम है अरब। अरब में एक मशहूर शहर है, उसका नाम है मक्का। उसका नाम क्या है? मक्का। अरब में एक मशहूर शहर है, उसका नाम है क्या? मक्का। मक्का। हमारा हमारे रसूल उसी शहर में क्या हुए? पैदा हुए। हमारे रसूल उसी शहर में क्या हुए? पैदा हुए। तो ये गोया कि ये बता रहे हैं कि हमारे रसूल पैदा कहाँ हुए, हमारे रसूल पैदा कहाँ हुए। और अरब लफ्ज जो है असल में उर्बतुन था, जिसके माने हैं बे आबो गियाह जमीन, यानी सेहरा के हैं। अरब के माने सेहरा के हैं। ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है। बंजर मैदान, अरब के माने बंजर मैदान, ऐसी जमीन जहां जो जरखेज ना हो, ऐसी जमीन जो जरखेज ना हो, उसको बोलते हैं क्या है? अरब। तो चूंकि मक्का की सरजमीन जो थी जरखेज नहीं थी, वहां पानी नहीं था, वहां दाना नहीं था, वहां जो है क्या बोलते हैं, हरियाली नहीं थी, तमाम चीजों से ये महरूम था। लेकिन अल्लाह ने उस सरजमीन को सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए ऐसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शहर बना दिया कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मंबा और मरकज बन गया। और दुनिया की तमाम चीजें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं से आज वहां मिल गई। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले भी मक्का आबाद हुआ था, उजड़ गया। मक्का आबाद हुआ था, उजड़ गया था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जब आबाद हुआ तो उसके बाद उजड़ा नहीं, क्योंकि अरब जो है ये खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे। खाना बदोश मतलब अपने घर को अपने कंधे पर रख करके घूमना। उनको जहां कहीं पानी नजर आ गया वहां क्याम कर लिया, जहां दाना नजर आ गया वहां क्याम कर लिया। अरब घूमते रहते थे सहराओं में, पानी नहीं था। अब पानी पर इंसानी जिंदगी का निसार है, तो इसलिए खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे। खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे। तो लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाया और अल्लाह ने वहां चश्मा आबे जमजम का चश्मा जारी कर दिया, तो उस चश्मे ने सबको सैराब कर दिया। वहां सबसे पहले जो कबीला आकर के आबाद हुआ, कबीले जुरहुम था। कबीले जुरहुम था जो आकर के आबाद हुआ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम यहाँ क़याम करना चाहते हैं। तो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तो क़याम तो कर सकते हो, लेकिन इस चश्मे पर जो है कब्जा हमारा रहेगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। इस चश्मे के मालिक तुम नहीं होगे, हम रहेंगे। तो ऐसे कबीले जुर्म बसा दीगर कबाइल आहिस्ता आहिस्ता बसते गए। तो अरब जो माना है बे आबो गियाह मैदान, चटियल मैदान, बंजर मैदान, ऐसा मैदान जहां कोई हरियाली पानी दाना ना हो। तो बता, अरब में एक मशहूर शहर है। अरब में एक मशहूर क्या है? शहर है। उसका नाम है क्या? मक्का। उसका नाम है मक्का। उसका नाम क्या है? मक्का। और मक्का किस के लफ्ज माने क्या है? लफ्ज मक्का जो हम बोलते हैं उसका भी माना है, उसका भी माना है। ये नहीं कि बेमाना लफ्ज है, उसके भी माने हैं। मक्का की भी माने। लफ्ज मक्का ये अरबी लफ्ज है मक्का, जिसके माने हैं क्या? जज्ब करना। जिसके माने हैं जज्ब करना, यानी अपने अंदर सुमो लेना, अपने अंदर सुमो लेना। क्योंकि मरकजी हैसियत। अपने अंदर क्या करना? जज्ब कर लेना, अपने अंदर दाखिल कर लेना। इसलिए कि जो भी वहां जाता है वो उसी का गर्विदा होकर के रह जाता है। जो वहां जाता है उसी का गर्विदा होकर के रह जाता है। और वहां चाहता है कि हमेशा हमेश रहे, हमेशा हमेश वहां रहना चाहता है। वहां जाकर के हमेशा हमेश क्या करना चाहता है? रहना चाहता है। एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है, एक इंसान की
یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جائے تو ہی رہ جائے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جذب کرنا، اپنے اندر سمو لینا، اپنے اندر داخل کر لینا، اپنے اندر سمو لینا، اپنے اندر کیا کرنا، داخل کر لینا۔ یا دوسرا معنی بیان کیا ہے کہ مکہ کے معنی زائل کرنا، نکال پھینکنا، دور کرنا، ایک معنی یہ بھی ہے۔ مکہ کا ایک معنی ڈکشنری میں جو بیان کیا ہے، زائل کرنا، نکال پھینکنا، دور کرنا، دور کرنا، یہ معنی بھی ہے۔ تو لفظ عرب کے معنی ہوئے کیا؟ بے آب و گیاہ میدان، چٹیل میدان، صحرا، جنگل، بیابان۔ جنگل میں تو وہاں درخت ہوتے ہیں، وہاں درخت بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور مکہ کے معنی ہے کیا ہے؟ جذب کرنا، سمو لینا، سمیٹ لینا، سمو لینا، سمیٹ لینا۔ تو یہاں بتایا ہمارے دیش سے دور، بہت دور پچھم کی طرف ایک ملک ہے، اس کا نام ہے عرب۔ عرب میں ایک مشہور شہر ہے، اس کا نام ہے مکہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں تاریخ پیدائش جو ذکر نہیں کیا۔ ایک چیز میں بتاؤں، تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ تاریخ پیدائش میں کیا ہے؟ زبردست اختلاف ہے۔ اختلاف نہیں ہے دو چیزوں میں، اختلاف نہیں ہے دو چیزوں میں، اختلاف نہیں ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے پیر کے دن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن، یعنی منڈے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، بس ہو گیا۔ تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں زبردست اختلاف ہے، لیکن اختلاف نہیں ہے تو اس چیز میں کہ آپ کس دن پیدا ہوئے، آپ کہاں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پیر کے دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی سوموار، منڈے کے دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، بقیہ چیزیں کل ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ آج ٹائم شیخ نے کافی لے لیا تھا اور ادھر بھی کافی ٹائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔